ਡੀਅਰ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਸੀ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਬਿਲਿਟੀ ਆਫ ਫੰਕਸ਼ਨਸ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ, ਕੁਝ ਆਰਟੀਕਲਸ ਕੀਤੇ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਬਿਲਿਟੀ ਆਫ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਕੁਐਸਚਨਸ ਔਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਲਵਾਂਗੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਸਮਝਣ ਦੇ ਲਈ। See this example. A function f is defined as fx is equal to 1 plus x if and only if x is less than equal to 2 and fx is equal to 5 minus x if x is greater than 2. We have to show that f is not differentiable at x equal to 2. ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦਾ ਅਸੀਂ ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਤੇ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਖਦੇ ਦੋਨੋਂ ਇਕੁਅਲ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਦੋਨੋਂ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਜੇਕਰ ਦੋਨੋਂ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਕੁਅਲ ਨੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਬਲ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ f ਇਜ਼ ਨਾਟ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਬਲ ਐਟ x ਇਕੁਅਲ ਟੂ 2। ਇਹ ਸਾਡਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ fx ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 1 plus x if x is less than equal to 2 and fx is equal to 5 minus x if x is greater than 2. Left hand derivative will be equal to left hand limit of fx minus f2 upon x minus 2, that is x as limit as x approaches to 2 from left. Now put the value of fx for left limit. For left limit fx is equal to 1 plus x. Then this will be equal to limit as x approaches to 2 from left 1 plus x minus 3 upon x minus 2. ਤਾਂ ਕੀ ਆਏਗਾ, ਉੱਪਰ ਆਏਗਾ ਨੋਮੀਨੇਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ x minus 2, ਇਸ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ x minus 2 ਆਏਗਾ upon x minus 2 limit as x approaches to 2 from left। ਇਹ x minus 2 ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲਿਮਿਟ ਕੀ ਆਈ 1, that is the left hand derivative of fx is equal to 1। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ will be equal to limit as x approaches to 2 from right fx minus f2 upon x minus 2। ਰਾਈਟ ਲਿਮਿਟ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਲਵਾਂਗੇ fx is equal to 5 minus x, 5 minus x minus 3 upon x minus 2। this will be equal to limit as x approaches to 2 from right 2 minus x upon x minus 2। ਅਸੀਂ ਕਾਮਨ ਲਈਏ -1 ਕਾਮਨ ਫਰੋਮ ਨੋਮੀਨੇਟਰ, ਤਾਂ ਕੀ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲਿਮਿਟ x approaches to 2 from right minus x minus 2 upon x minus 2। this cancelled out, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲਿਮਿਟ ਕੀ ਆਏਗੀ -1। ਕਿਉਂਕਿ ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਤੇ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਇਕੁਅਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਆ ਰਿਹਾ 1 ਤੇ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਆ ਰਿਹਾ -1, ਦੋਨੋਂ ਇਕੁਅਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਐਟ x equal to 2, not derivable at x equal to 2। ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਕੱਢਣੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਬਲ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ fx ਹੈ x upon 1 plus modulus of x। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ x ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੈ modulus of x is equal to x ਹੋਏਗਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ fx is equal to x upon 1 plus x। ਜਦੋਂ x ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੈ from the definition of modulus of x, modulus of x will be equal to minus x, ਤਾਂ fx ਕੀ ਬਣ ਜਾਏਗਾ x upon 1 minus x। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ fx will be equal to x upon 1 plus x। ਜਦੋਂ x ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਔਰ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 0 ਹੈ ਤਾਂ fx is equal to x upon 1 minus x if x is negative। ਤਾਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਤੇ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਐਟ x equal to 0। then from the definition of left hand derivative of f at 0 will be equal to limit as h approaches to 0 from left f0 plus h minus f0 upon h। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਕਰੀਏ h ਤੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਹੋਏਗੀ h upon 1 plus h minus 0 ਤੇ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਹੋਏਗੀ 0 upon 1 plus 0, ਸੌਰੀ ਲੈਫਟ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਫੰਕਸ਼ਨ ਇਹ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਹ ਵਾਲਾ x upon 1 minus x ਤੇ ਅਪੋਨ ਕੀ ਨੰਬਰ ਕੀ ਆਏਗਾ h ਆਏਗਾ। ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ h ਕੈਂਸਲ ਆਊਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆਏਗਾ ਲਿਮਿਟ 1 upon 1 minus h as h approaches to 0 from left, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲਿਮਿਟ ਕੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ 1 ਆ ਰਹੀ ਹੈ। Similarly right hand derivative of f at 0 comes out to be 1, ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਨੋਂ ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ 0 ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤੇ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ 0 ਤੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੇ
इक्वल नहीं, इस करके फंक्शन की है डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 0. It means f is differentiable for all finite values of x. Next है सारे क्वेश्चन, for what choices of a and b the function is differentiable at x equal to c. तो क्योंकि सारे को फंक्शन डिफरेंशिएबल है, इट मीनस फंक्शन कंटिन्यूस भी होएगा किस पॉइंट ते, सी पॉइंट ते, क्योंकि फंक्शन ਦੇ डिफरेंशिएबल होने के लिए जरूरी है कि फंक्शन मस्ट बी कंटिन्यूस. फंक्शन इज डिफरेंशिएबल इफ एंड ओनली इफ एफ इज कंटिन्यूस. तो ਅਸੀਂ इसकी देखते हैं कि फंक्शन कंटिन्यूस क्यों है कि इफ लेफ्ट लिमिट ऑफ द फंक्शन इज इक्वल टू राइट लिमिट ऑफ द फंक्शन इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ द फंक्शन. तो पहले ਅਸੀਂ लेफ्ट लिमिट ऑफ द फंक्शन ਲੈਣੇ ਆ. लेफ्ट लिमिट वास्ते ਅਸੀਂ फंक्शन ਲਾਵਾਂਗੇ एक्स स्क्वायर when x equals to c from left will be equal to limit of fx यानी कि ax plus b when x equals to c from right will be equal to value of function at c. वैल्यू ऑफ फंक्शन एट सी ਅਸੀਂ इस फंक्शन इस तो लवांगे सी एक्स स्क्वायर तो, क्योंकि फॉर एक्स इक्वल टू सी वास्ते एफ एक्स है साडा एक्स स्क्वायर, इस तो एफ की वैल्यू सी ते क्या आएगी सी स्क्वायर. इत्थों साडे कोल लैफ्ट लिमिट आ रही है सी स्क्वायर, इत्थे राइट लिमिट जिहड़ी है साडे कोल की आएगी, जेकर असीं एक्स इक्वल टू सी पुट करिए तो राइट लिमिट आएगी ए सी प्लस बी एंड इज इक्वल टू सी स्क्वायर. इन इस तिना इक्वेशन तो साडे कोल ए सी प्लस बी कम्स आउट टू बी सी स्क्वायर. हुण असीं क्योंकि फंक्शन डिफरेंशिएबल है सी ते, इस करके लैफ्ट हैंड डेरीवेटिव विल बी इक्वल टू राइट हैंड डेरीवेटिव. लैफ्ट हैंड डेरीवेटिव वास्ते सारे कोल एफ एक्स है एक्स स्क्वायर ते एफ एक्स की वैल्यू सी ते की होएगी सी स्क्वायर. ऐसी पुट करते हैं तो लिमिट लैने एज एक्स प्लस टू सी फ्रॉम लैफ्ट. राइट हैंड डेरीवेटिव भी फंक्शन यूज करते हैं एफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी तो माइनस एफ सी, सी ते वैल्यू कढ़ने वास्ते असीं ए यूज करांगे फंक्शन एक्स स्क्वायर तो सी ते वैल्यू होएगी फंक्शन की होएगी सी स्क्वायर. तो लिमिट लवांगे एज एक्स प्लस टू सी फ्रॉम राइट, क्योंकि असीं राइट हैंड डेरीवेटिव लै रहे हैं. इस तो बाद असीं लैफ्ट हैंड डेरीवेटिव वास्ते पुट करते हैं एक्स इज इक्वल टू सी माइनस एच तो राइट हैंड डेरीवेटिव वास्ते पुट करते हैं एक्स इज इक्वल टू सी प्लस एच तो लिमिट क्या आएगी एज एच प्लस टू 0 तो राइट हैंड साइड से भी लिमिट आएगी एज एच प्लस टू 0. एक कुछ कैंसिल हो गया, सॉल्व कर सी स्क्वायर भी कैंसिल हो जाएगा. सर को लैफ्ट हैंड जो डेरीवेटिव है वो आएगा एज लिमिट एज एच प्लस टू 0 एच स्क्वायर माइनस 2c एच अपॉन एच माइनस एच तो राइट हैंड साइड क्या आएगा ए सी प्लस बी प्लस ए एच माइनस सी स्क्वायर अपॉन एच एज एच प्लस टू 0. क्योंकि ए सी प्लस बी इज इक्वल टू सी स्क्वायर है तो ए सी प्लस बी सी स्क्वायर होगा, सी स्क्वायर ना कैंसिल हो जाएगा. सर्कल क्या आएगा ए एच अपॉन एच तो लैफ्ट साइड सर्कल की आ रहा है एच स्क्वायर माइनस 2c एच अपॉन एच, ऊपर नीचे एच कॉमन आके कैंसिल हो गया, इस दे विच भी एच कैंसिल हो गया. तो लैफ्ट जोड़ा है साढ़े को एच कैंसिल होने तो बाद क्या है साढ़े को माइनस एच प्लस सी लिमिट एज एच प्लस टू 0 तो इधर साढ़े को क्या आएगा लिमिट ऑफ एच ए एज एच प्लस टू 0 तो इसकी लिमिट साढ़े को क्या आएगी जो एच 0 करांगे तो 2c आएगा. इसकी लिमिट आएगी साड़ी ए तो ए कम्स आउट टू बी 2c तो असी इस ए की वैल्यू इस दे विच पुट करिए इक्वेशन 1 दे विच, इक्वेशन 1 दे विच पुट करिए तो साढ़े कोल 2c इंटू सी प्लस बी कम्स आउट टू सी स्क्वायर तो बी की वैल्यू आएगी माइनस सी स्क्वायर. ए साढ़े कोल 2c आएगा तो बी आएगा साढ़े कोल माइनस सी स्क्वायर. नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर व्हाट चॉइसेस ऑफ ए एंड बी इज द फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू 1. साढ़े कोल फंक्शन है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस ए फॉर एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एफ एक्स इज इक्वल टू बी एक्स प्लस 2 फॉर एक्स लेस देन इक्वल टू लेस देन 1. क्योंकि फंक्शन डिफरेंशिएबल है एट फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स, इसका मतलब है कि फंक्शन 1 ते भी डिफरेंशिएबल होएगा, फंक्शन 1 ते डिफरेंशिएबल है तो फंक्शन 1 ते की होएगा कंटिन्यूस होएगा. कंटिन्यूस होएगा तो फंक्शन दी लैफ्ट हैंड लिमिट एट 1 राइट हैंड लिमिट ते फंक्शन दी वैल्यू तीनों इक्वल होंगे. हुण लैफ्ट हैंड लिमिट वास्ते असीं यूज़ करते हैं फंक्शन बी एक्स प्लस 2 फॉर
left hand limit. Limit as x equals to 1 from left of px plus 2 will be equal to limit of x square plus 3x plus a as x equals to 1 from right. ਤੇ ਵੈਲਿਊ ਆਫ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕੀ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਕੱਢਾਂਗੇ ਅਸੀਂ fx is equal to x square plus 3x plus a ਤੋਂ ਕੱਢਾਂਗੇ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ 1 ਪੁੱਟ ਕਰਦੇ comes out to be 1 plus 3 plus a. ਲੈਫਟ ਲਿਮਿਟ ਹੈ ਜਦੋਂ x 1 ਨੂੰ ਅਪਰੋਚ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ b plus 2 ਆਏਗੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ x equal to 1 ਪੁੱਟ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 1 plus 3 plus a ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਵੈਲਿਊ ਫੰਕਸ਼ਨ ਇਹ ਵੀ ਇਹੀ ਹੈ 1 plus 3 plus a। ਇਸ ਸਾਡੇ ਕੋਲ a ਦੀ ਵੈਲਿਊ b minus 2 ਆ ਗਈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਫੰਕਸ਼ਨ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਬਲ ਵੀ ਹੈ 1 ਤੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਮਸਟ ਬੀ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ। ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਕੀ ਹੋਏਗਾ 1 ਤੇ fx minus f1 upon x minus 1 as limit as x equals to 1 from left ਤੇ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਲਿਮਿਟ ਵਾਸਤੇ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਲਿਮਿਟ ਲਵਾਂਗੇ x equals to 1 from right। ਹੁਣ ਅਸੀਂ fx ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਕਰੀਏ ਫॉर ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ। ਲੈਫਟ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ लेफ्ट वास्ते फंक्शन है bx plus 2 पुट करो fx is equal to bx plus 2 f ਦੀ वैल्यू कितनी है फंक्शन ਦੀ 1 plus 3 plus a upon x minus 1। राइट साइड वास्ते राइट हैंड डेरिवेटिव वास्ते ਅਸੀਂ फंक्शन ਲਵਾਂਗੇ x square plus 3x plus a। वैल्यू फंक्शन ਦੀ है 1 plus 3 plus a। ਅਸੀਂ ਕੱਢੀ ਸੀ फंक्शन ਦੀ वैल्यू। ਇਹ ਪੁੱਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਦੀ ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਲਿਮਿਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤੇ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਲਿਮਿਟ ਦੋਨੋਂ ਇਕੁਅਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਲੈਫਟ ਲਿਮਿਟ ਵਾਸਤੇ ਪੁੱਟ ਕਰਾਂਗੇ x is equal to 1 minus h ਤੇ ਰਾਈਟ ਵਾਸਤੇ ਪੁੱਟ ਕਰਾਂਗੇ ਸੀ x is equal to 1 plus h। h ਕੀ ਹੈ ਇੱਕ ਵੈਰੀ ਸਮਾਲ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨੰਬਰ ਹੈ ਤੇ ਜਦੋਂ x 1 ਨੂੰ ਅਪਰੋਚ ਕਰਦਾ ਹੈ ਫਰੋਮ ਲੈਫਟ ਤੋਂ ਜਾਂ ਰਾਈਟ ਤੋਂ ਤਾਂ h 0 ਨੂੰ ਅਪਰੋਚ ਕਰੇਗਾ। h ਕੀ ਕਰੇਗਾ 0 ਨੂੰ ਅਪਰੋਚ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਅਸੀਂ h ਨੂੰ 0 ਪੁੱਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ b ਮਾਈਨਸ ਸਾਡੇ ਕੋਲ b ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈ a ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈ b minus 2 ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਪੁੱਟ ਕਰੀਏ a ਦੀ ਵੈਲਿਊ b minus 2 ਤਾਂ 0 ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ bh upon h ਆ ਗਿਆ। h ਕੈਂਸਲ ਆਊਟ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਦੀ ਲਿਮਿਟ ਕੀ ਆ ਗਈ b। ਰਾਈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਸਕੁਏਅਰ ਨੂੰ ਖੋਲੀਏ plus 3h minus 4 ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਰਿਹਾ h square plus 5h upon h। ਇਸ ਤੋਂ h ਕਾਮਨ ਆ ਗਿਆ ਉੱਪਰ h ਕਾਮਨ h plus 5 upon h ने h कैंसिल होगा कि बच्चे h plus 5। जो h 0 ਨੂੰ ਅਪਰੋਚ ਕਰਦਾ ਇਸ ਦੀ ਲਿਮਿਟ ਕੀ ਆਏਗੀ 5 ਆਏਗੀ। और ਲੈਫਟ ਲਿਮਿਟ ਕੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ b ਤਾਂ b comes out to be 5। ਜੇ b 5 ਪੁੱਟ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ a ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆਏਗੀ a ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆਏਗੀ 3। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਐਸਚਨ examine the continuity and derivability in the interval minus infinity to plus infinity for the following function। function है fx is equal to 1 when x is negative, fx is equal to 1 plus sin x when x lies between 0 and pi by 2 fx is equal to 2 plus x minus pi by 2 whole square when x is greater than pi by 2। द पॉसिबल पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी की हो सकते हैं तो 0 हो सकता है, दूसरा हो सकता पाई बाय 2। असी की करते हैं पहला तो एक्स इक्वल टू 0 देखते हैं। एक्स इक्वल टू 0 तो लैफ्ट लिमिट की आ रही है फंक्शन की 0 वास्ते लैफ्ट वास्ते फंक्शन है साडा 1 तो फंक्शन की लिमिट होएगी 1 ही आएगी क्योंकि 1 कॉन्स्टेंट है। तो राइट लिमिट की राइट लिमिट वास्ते असीं फंक्शन लवांगे 1 प्लस साइन एक्स लिमिट एज एक्स इक्वल्स टू 1 0 फ्रॉम राइट लिमिट ऑफ 1 प्लस साइन एक्स एज एक्स इक्वल्स टू 0 फ्रॉम राइट। असीं पुट करांगे एक्स इज इक्वल टू 0 प्लस एच तो एच की है वेरी स्मॉल पॉजिटिव नंबर एज एक्स इक्वल्स टू 0 फ्रॉम राइट एच इक्वल्स टू 0। तो एच 0 हो गया साइन 0 1 हो गया 0 हो गया तो इसकी लिमिट 1 आएगी। लेफ्ट लिमिट भी 1 आ रही है राइट लिमिट भी 1 आ रही है तो फंक्शन की वैल्यू
फंक्शन की वैल्यू वास्ते असी क्योंकि x इक्वल टू 0 वास्ते फंक्शन ये है, असी x की 0 तो वैल्यू कढ़ी है, तो f0 विल बी इक्वल टू 1 प्लस साइन 0 0 होंगे तो 1 आएगी। फंक्शन की लैफ्ट लिमिट, राइट लिमिट तो फंक्शन की वैल्यू तीनों इक्वल ने किस पॉइंट से x इक्वल टू 0 ते, देयरफॉर फंक्शन इज कंटीन्यूअस एट x इक्वल टू 0। हुण π/2 ते लैफ्ट लिमिट देखिए, π/2 ते लैफ्ट लिमिट वास्ते फंक्शन असी लवांगे, लैफ्ट वास्ते फंक्शन लवांगे असी ए वाला, राइट वास्ते असी लवांगे ए वाला। लैफ्ट साडी लिमिट आएगी लिमिट ऑफ 1 प्लस साइन एक्स एज एक्स प्लस टू π/2 फ्रॉम लैफ्ट असी पुट करते हैं एक्स इज इक्वल टू π/2 माइनस एच, एच की है एक स्मॉल वेरी स्मॉल पॉजिटिव नंबर, रियल नंबर है, तो जो एक्स π/2 ਨੂੰ ਲੈਫਟ ਤੋਂ ਅਪਰੋਚ ਕਰਦਾ ਹੈ, h 0 ਨੂੰ ਅਪਰੋਚ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਪੁੱਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ sin π/2 ਮਾਈਨਸ h ਵਿਲ ਬੀ ਇਕੁਅਲ ਟੂ cos h, ਜਦੋਂ h 0 ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ cos 0 1 ਹੋਏਗਾ, 1 + 1 2 ਆਏਗੀ ਲਿਮਿਟਸ ਦੀ। ਰਾਈਟ ਲਿਮਿਟ ਕੀ ਹੋਏਗੀ, ਲਿਮਿਟ ਆਫ fx ਐਜ਼ x + 2 π/2 ਫਰੋਮ ਰਾਈਟ, ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ fx ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਲਵਾਂਗੇ ਆ ਵਾਲਾ 2 + x - π/2 ਹੋਲ ਸਕੁਅਰ। इस असीं पुट करांगे x इज इक्वल टू π/2 प्लस h, पुट कर दो, h की है एक वेरी स्मॉल पॉजिटिव नंबर है, तो जो x π/2 प्लस h फ्रॉम राइट तो अप्रोच करता है तो h 0 अप्रोच करेगा, तो लिमिट ऑफ 2 + π/2 प्लस h - π/2 होल स्क्वायर, ये कैंसिल हो गया, तो 2 + h होल स्क्वायर आ गया, h 0 हो गया तो सारे को इसकी लिमिट आएगी 2। लैफ्ट लिमिट भी 2 आ रही है, राइट लिमिट भी 2 आ रही है। फंक्शन की वैल्यू π/2 की होएगी, वैल्यू वास्ते असीं फंक्शन यूज करांगे आ वाला, क्योंकि इक्वल टू x इक्वल टू π/2 वास्ते fx है 2 + x - π/2 होल स्क्वायर। इस तो साडे कोल फंक्शन की वैल्यू कितनी आ रही है 2, फंक्शन की लैफ्ट लिमिट, राइट लिमिट ते फंक्शन की वैल्यू तीनों इक्वल ने, इस करके फंक्शन की है कंटीन्यूअस एट x इक्वल टू π/2। हुण असीं डेरीवेटिबिलिटी चेक करते हैं, x इक्वल टू 0 ते लैफ्ट हैंड डेरीवेटिव कितना है fx - f0 अपॉन x - 0 एज लिमिट एज x + 2 0 फ्रॉम लैफ्ट, ये साडे कोल 0 आ रहा है, तो राइट हैंड डेरीवेटिव साडे कोल की आ रहा है 1, क्योंकि दोनों इक्वल नहीं है, इस करके फंक्शन डेरीवेबल नहीं है एट x इक्वल टू 0। हुण x इक्वल टू π/2 देखते हैं, लैफ्ट हैंड डेरीवेटिव जिहड़ा है वो साडे कोल कितना आ रहा है 0 आ रहा है, तो राइट हैंड डेरीवेटिव साडा है वो आ रहा है 0, इट मीनस साडा लैफ्ट हैंड डेरीवेटिव इज इक्वल टू राइट हैंड डेरीवेटिव, इट मीनस फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू π/2। बच्चों ये साडे कोल कुछ सम सीगे डिफरेंशिएबिलिटी के बारे, साडा डिफरेंशिएबिलिटी का लैसन खत्म हो गया, असी हुण कल नूं नवां लैसन स्टार्ट करांगे इन द नैक्सट वीडियो। थैंक यू स्टूडेंट्स।